मुश्किल वक्त, मुश्किल हालातों के साथ लड़ना, यही जिंदगी की सच्चाई है। यहाँ रुकना मना है, यहाँ झुकना मना है, इसलिए हमको चलना है, क्योंकि हमको जीना है। ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वी आर अगेन लाइव विथ सम स्पेशल गेस्ट। आज हमारे पास सब कुछ सही सलामत रहते हुए भी हम फिजिकली या मेंटली फिट रहने के बावजूद भी अगर लाइफ में कुछ छोटे मोटे परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब हम घबरा जाते हैं। हम जिंदगी में कई बार गिर जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, जो लोग फिजिकली फिट नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं होता है, तो उन लोग की जो 24 आवर्स की जर्नी, एवरी डे जो जर्नी है, वो कितना मुश्किल रहता होगा। जिनका दोनों पैर नहीं है, किसी का दो हाथ नहीं होता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हम डे बाय डे लाइफ में देखते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे जो मेंटली चैलेंज्ड है। कुछ लोगों की मेंटल फिटनेस सही नहीं रहता है, उन लोगों को मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरीज में डाल देते हैं। क्या उनको सोसाइटी एक नॉर्मल, जो नॉर्मल पीपल की परसेप्शन से देख सकता है? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है, जो गेस्ट है, उनका नाम है मिस्टर शुभेंदु मौलिक सर, जो कि कलकत्ता से है। ही इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उन्होंने एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ एसोसिएटेड थे, अभी महावीर सेवा सदन कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले वेलकम करते हैं मिस्टर शुभेंदु मौलिक सर को। वेलकम सर। Welcome. Thank you. Am I audible, sir? Yes sir, definitely everything is perfect. Okay, sir. तो चलिए सर पहले शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है, रोल ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन फॉर न्यूरोटिपिकल चाइल्ड। तो ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, इसके बारे में आप पहले शुरू कीजिए और ब्रीफ व्यू दीजिए आज के टॉपिक के बारे में। Okay, thank you NLP and thank you Sattamandal sir for giving me that opportunity to discuss about some role of occupational therapy and also sensory integration therapy, as well as how sensory integration and therapy helps or develops basic motor and basic sensory skills, which is precursor skills for a child for development overall. So sensory integration means integration of all senses that have in our body. Those 5 senses we know, but apart from that, we have also 3 senses like vestibular, proprioceptive, and another sense is called tactile, and as well as interoception. Why I am telling about tactile? We know about the tactile, that is our involuntary and voluntary both sense, but there are some difference because we know there is a crude touch and there is a very silk or smooth touch. So there is a differentiation between 2 types of tactile touch, and whatever those 3 another senses like balance skills, when we are moving around in our environment, our body is totally balanced by gravitational forces and our interoception forces and our joint position, muscle position, both positions, both senses. So that is called our balance sense. And when we can hold properly our body, our hand, our fingers are moved properly in accurate position for reaching properly, for gripping properly, we need also some senses that is called proprioception and kinesthetic movements. And another is called interoception, feelings of dislike,
feelings of hungriness, feelings of trust. So these three interoception skills, these three involuntary senses are most crucial senses with other five senses that we have in our body. So in coordination, this all over this sense, when totally coordinated in a smooth manner, in a coordinated way, the desired behavior of a child, of a human being has produced or will reoccur. Then what is sensory processing disorder, sir? Sensory processing disorder means when any one senses in our body that we have is or does not work properly or does not coordinate in a proper manner, then some root pains or root signs and symptoms may occur or may happen. Sometimes we can see that a child who is continuously jumping in floor or bed, a child who has less pain threshold pattern, a child who has very high or very severe pain threshold pattern, a child who is having haircut issues, who is having nail trimming issues, who is having brushing issues, those senses are not processed in equal manner. In a simple manner, if I can explain, that is, whenever a work, whenever a activity, if we can analyze this, that need different types of senses, that need vestibular, that mean proprioceptive, that need tactile. Whenever any one senses in among those senses is not working with a coordinated manner, then the child cannot understand whatever you are asking to him or whatever commands he has been taught but he has learned. So you need to work on coordinately in those type of senses. क्या सर एक बच्चे के लिए ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन या डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, कि बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंटल, बहुत सारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होता है क्या, एक फिजिकल, एक कॉग्निटिव, एक स्पीच रिलेटेड, एक मोटर रिलेटेड, एक उसका सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन विद अदर्स एंड बिहेवियर पार्ट. सो ऑल दोस आर डेवलपमेंटल पैटर्न्स. अगर एक भी डेवलपमेंटल पैटर्न एक के साथ जुड़ा ना हो, सो अदर्स जो माइलस्टोन्स है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वो डिलेड होगा ही होगा. सो ये बहुत ही जरूरी है विकास होना. तो ये जो बचपन से मतलब साल से हम इसको मतलब वॉच करें या केयरफुली देखें कि ये सही तरीके से जा रहा है कि नहीं. एग्जैक्टली. तो ये जो सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, ये डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? सेंसरी क्या होता है, हम लोग का प्रीकर्सर स्किल होता है. जैसे मैं अगर एक छोटा एग्जांपल दूं, अगर हम लोग चल रहे हैं, जब हम लोगों के पैर के नीचे कुछ कील या पत्थर आ जाए तो हम लोग पैर उठा लेते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक कॉमन थिंग्स इन दिस? सो you get a stimulation from environment, then brain process it and quick response has come from brain. So that stimulation which you have get from the environment, that is called sensation, that is called pain sensation, and you are feeling pain. That is why your foot will go like this. So every movement, for everything, for physically, for cognitively, for speech, your basic stimulation is sensory. From sensory then goes motor, then goes perception, then goes cognition, and then higher function like clinical reasoning, judgment, problem solving. Those higher function skills are needed for being developed from birth
to higher area. So we all are working under for developing a child to enhance their higher cognitive function. So because in this sensory processing area, in those aspects, these higher function are totally disrupted. So your basic skills are sensory. If you work on those sensory skills, ability automatically develops. So don't go or don't run after your skill. Work on your abilities. Skills automatically comes whenever ability develops. So ability develops through sensation. सर, ये जो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड होते हैं, इनका जो प्रॉब्लम्स होता है या डिसऑर्डर होता है, ये कितना कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं? जैसे कि आप एसपीडी या एसएलडी, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए। एक्चुअली देखिए, पहले तो पीडब्ल्यूडी एक्ट में बोला गया था हम लोग का 17 है, तो अभी जो री अमेंडमेंट में हुआ है एक्ट में, तो अभी 21 हुआ है। मगर देखा जाए अगर तो सेरिब्रल पाल्सी जो कि फिजिकल एंड मेंटल, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी जो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसके बाद डाउन सिंड्रोम, ओके, जो हम लोग का ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो रहता है, उसके बाद जो एमआर मेंटली रिटार्डेशन जो टोटली मेंटल कंडीशन परवेसिव कंडीशंस के लिए जो है, जो हर एक एरिया में ये सेंसरी एरिया फैक्टर करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है जिसमें हम लोग का ये सेंसरी नीड्स 19-20 टाइप में प्रेजेंट रहता है। तो ये एसपीडी जो है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये इसके अंडर में कौन सी प्रॉब्लम्स हम जनरली देख सकते हैं कि इसको एसपीडी कैटेगरीज में डाल सकते हैं? कौन से ऐसे जो सिम्टम्स आप बता सकते हैं एसपीडी की? Actually, sensory processing disorder are classified 3 types. One is sensory modulation, another is sensory based motor disorder, and another is pure sensory issues. मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यह बताता हूँ। सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, जहां पे सेंसरी इश्यूज के साथ आपका बिहेवियर पैटर्न भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है। क्लियर? वो तीनों टाइप का हो सकता है। व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज योर सेंसरी हाइपर एक्टिविटी बट सेंसरी ओवर रेस्पॉन्सिविटी, अनदर इज सेंसरी सीकिंग, एंड थर्ड वन इज सेंसरी हाइपो रेस्पॉन्सिविटी। अगर मैं ये तीनों चीज का क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल दूं तो और भी ये समझने में सुविधा होगा। तो फर्स्ट है सेंसरी ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है, कुछ बच्चे में देखा जाता है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई चढ़ने में उसको दिक्कत होता है। कभी कभी देखा जाता है कोई बच्चा झूला झूलने में या पार्क का जो एम्यूजमेंट पार्क का जो डिफरेंट टाइप का स्लाइड्स और राइड्स रहता है उसमें उसको दिक्कत होता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, बाल काटने में दिक्कत होता है, नाखून काटने में दिक्कत हो सकता है, या क्या होता है कोई भी एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोग शिफ्ट करें वहां पे डिफरेंट टाइप्स का साउंड हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का लाइट्स हो सकते हैं, वहां से वो भाग जा सकता है, उसको पसंद नहीं होता है वो एनवायरमेंट। और अगर बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड हो तो कान बंद करना, या कोई भी स्टार्टल रिफ्लेक्स मतलब प्रेशर कुकर का सीटी हो, मिक्सर ग्राइंडर टाइप का हो, उसमें भी वो कान बंद करता है। तो दिस इज कॉल्ड ओवर सेंसिटिविटी বা ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर इज कॉल्ड सेंसरी हाइपोसेंसिटिविटी। क्या होता है, हम लोग में ना एक कॉमन चीज होता है, जो कोई बच्चा अगर बैठता नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट टर्म कर देते हैं, डायरेक्ट डायग्नोस करते हैं वो बच्चा हाइपर एक्टिविटी है। मगर ये रूल करना होता है कि वो प्योरली हाइपर एक्टिव है या सेंसरी प्रोसेसिंग उसको बैठने नहीं दे रहा है, वो सेंसेशंस को एनवायरनमेंट में ढूंढ रहा है। सो दैट टाइप ऑफ कैटेगरी चिल्ड्रन आर टर्म्ड एज सेंसरी सीकिंग चाइल्ड। ओके, सो हाइपर सेंसिटिव जो सेंसरी स्टिमुलेशन से उसको सेंसिटिविटी हो रहा है, दे आर कॉल्ड ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओवर सेंसिटिव। और जो बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, सब कुछ
छू के देख रहा है, या ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंब कैबिनेट में चढ़ रहा है, या एक जगह से एक जगह भाग रहा है, दे आर कॉल्ड सेंसरी सीकिंग। कुछ सेंसरी नीड्स के वजह से वो इधर उधर भाग रहा है। अनदर इज कॉल्ड सेंसरी हाइपोसेंसिटिविटी। जो डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है वो ना एक जगह बैठा ही रहता है। हाँ, उसको लेजी टाइप का फील होता है। चलो उसको हम लोग अगर जितना भी बोलेंगे, चलो करो, चलो उठो, आओ करें, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, चलो ये ली, उसका बॉडी का जो टोन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्रायोसेप्शन एंड काइनेस्थेसिया। जैसे हम लोगों में हाथ में अगर मच्छर बैठा हो तो हम लोग को देखना नहीं होता है कि वो हाथ कहाँ पे जाना है और कितना फोर्स लगाना है, ये हम लोगों को देखना नहीं होता है। मगर सेंसरी प्रोसेसिंग जो हाइपोसेंसिटिविटी बच्चा होता है, इसका ये सेंसेशन और इसका ये अवेयरनेस ही नहीं रहना है कितना फोर्स उसको अप्लाई करना है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कोई कोई बच्चे का जिसका बॉडी टोन कम हो, वो पैर पीछे करके बैठता है, या बानी हॉपिंग, जैसे हम लोग बच्चा क्रॉलिंग करता है वो ना करके पीछे दो पैर को उठा उठा के वो क्रॉल करता है, या क्या होता है पेंसिल पकड़ने में ग्रिपिंग प्रॉब्लम उसको होता है, या इतना लाइट वो लिखता है वो हम लोग उसको समझ नहीं सकते पढ़ाई करके पढ़ के। बा जो इतना हाइपर सेंसिटिविटी होता है, या वो पेंसिल ही पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसका टेक्सचर को उसको डिफिकल्ट होता है। या अगर एक सिंपल एग्जांपल ले, हम लोग का जो वी कलर का भी टी शर्ट होता है और राउंड नेक भी टी शर्ट होता है। कुछ कुछ बच्चे का ये वी नेक टी शर्ट पहनने में बहुत दिक्कत होता है। कुछ कुछ बच्चे को हाथ पैर के नीचे और हाथ के नीचे अगर भीग जाए या मुंह में खाने के टाइम में कुछ लग जाए उसको पसंद नहीं होता, तुरंत पोंछना होता है। या कोई भी खाना शर्ट में गिर गया या पैंट में गिर गया उसको तुरंत खोलना होता है। सो ये सब ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाइपर रेस्पॉन्सिबिलिटी का साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सेंसरी ब्रेस्ट मोटर डिसऑर्डर, दैट इज प्योरली मूवमेंट भी रहेगा, मूवमेंट के प्रॉब्लम भी रहेगा, उसके साथ सेंसरी प्रॉब्लम भी रहेगा। जैसे डिस्प्रैक्सिया, वी नो द टर्म प्रैक्सिस। अब प्रैक्सिस क्या होता है, कोई भी काम करने के समय हम लोग का एक प्लानिंग चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए, एक ऑर्गेनाइजिंग वे चाहिए जो हम लोग वो काम को पूरा कर सके। किसी किसी बच्चे में होता है कि वो बच्चे को आइडिया ही नहीं है वो काम कैसे करना है। हो सकता है वो चीज उसको पकड़ना ही नहीं है इसलिए वो मूवमेंट नहीं करता है। हो सकता है कोई बच्चा चेयर में ना बैठता हो, जमीन पे बैठ रहा हो सकता है कोई भी बच्चा खुद को किसी चादर में लिपटा रख रहा हो सकता है कोई भी बच्चा अचानक जाके दीवार में प्रेशर दे रहा हो अचानक। किसी का मूवमेंट भी क्लमजी टाइप का हो सकता है, बहुत धीरे 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 चलना। सो दे आर कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया। एंड अनदर टाइप इज कॉल्ड प्योरली सेंसरी बेस्ड, मतलब सिर्फ टच सेंसिटिविटी, मतलब पैर के नीचे अगर कुछ लग गया उसको दिक्कत होता है। जैसे कोई कोई बच्चा ऐसा रहता है सी बीच में जाने से जो भीगा बालू रहता है ना उसको पैर में लगने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अगर सूखा बालू रहता है तो वो सही है, ठीक है, मगर जैसे ही वो पैर भीग गया उसको प्रॉब्लम होता है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी है जो विंटर के मौसम में हाफ शर्ट और गर्मी के मौसम में फुल शर्ट पहनना चाहता है ड्यू टू टैक्टाइल इश्यूज। और कोई कोई बच्चा ऐसा भी है जो कपड़ा का टेक्सचर चेंज होने से भी उसको दिक्कत होता है। सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स। थैंक यू सर। ये जो एसएलडी होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी सिम्टम देखें? एक्चुअली एसएलडी का जो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज जो होता है एक बहुत ही बड़ा वास्ट टर्म है सर। सो इस चाहिए पहले हमेशा ये डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ, को भी बोलता हूँ, लर्निंग डिफिकल्टी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कंप्रीहेंशन बहुत एरिया एस्पेक्ट में हो सकता है। तो we need a psychologist for assessing whether this child has learning difficulty or disability. So, primary one problem or multiple problem. Now, which are the areas where we have to give those rehabilitations part, like reading, writing, pronunciation, auditory part, articulation part.
So we need a psychologist for assessing and diagnosis. Then we need an occupational therapist. Then we need a special educator. Then we need a speech therapist. So this multiple team you have to need, but you have to work out for those multiple rehabilitation professionals for rule out whether it is a gross specific learning difficulties or any as particular aspect of learning difficulties are there. क्या सर सेंसरी इंटीग्रेशन बोथ एसपीडी एंड एसएलडी के लिए इफेक्टिव है? यस, यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार चीज है सर, वो मैं पहले बोलना चाहूंगा। कुछ सिम्टम्स ऐसे होता है सर, वो लुक्स लाइक अ सिमिलर एसपीडी एंड एसएलडी लुक लाइक अ सिमिलर सिम्टम्स। जैसे अगर सिंपली एग्जांपल हम लोग ले, कुछ किसी भी टाइम पे हम लोग बुखार हो सकता है, हम सभी को बुखार कभी ना कभी होता है, ठीक है। सो बुखार कैसे हो सकता है? बुखार ठंड लगने से होता है। बुखार हम लोग अगर चोट लग जाए, बहुत ही दर्द है, उससे भी हो सकता है। चाहे वो हम लोग का गैंग्रीन या फिस्टुला किसी भी टाइप का अगर कोई भी एब्सेस फॉर्मेशन बॉडी में हुआ, उसके दर्द की वजह से फीवर हो सकता है। कोई इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है। तो फीवर लुक्स लाइक अ कॉमन सिम्टम। वैसे ही सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज में कभी कभी टच का प्रॉब्लम होता है। एसएलडी में भी कभी कभी बच्चा पेन जब पकड़ना होता है, वो ठीक तरह से प्रॉब्लम वो होल्ड नहीं कर पाता, उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। सो समटाइम्स एसपीडी एंड एसएलडी इज सिमिलर लुक अलाइक। सो यू हैव टू रूल आउट फास्ट वेदर इट इज प्रॉपर एसएलडी और इट्स द सेंसरी इश्यूज। सो यू हैव टू assess those two things by two terms with psychologist, and then sensory profile and sensory checklist and SIPT by an occupational therapist. डेफिनेटली। सर ये स्टैंडर्ड वो प्रोटोकॉल क्या होता है? स्टैंडर्ड ओ प्रोटोकॉल मीन्स जहां पे आप कहीं पे भी जाओ, इंडिया का कहीं पे भी जाओ, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होता है। क्योंकि अगर मैं कुछ टाइप का करूँ, कोई दूसरे प्रोफेशनल दूसरे टाइप का करे, कोई दूसरे टाइप का करे, तो वैसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसमें आप जहां पे भी इंडिया के कोई भी स्टेट में जाओ वो एक्सेप्टेबल रहेगा। सो मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत टाइप का मैंने देखा है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बच्चा आज मेरे पास आया, हो सकता है उसका तबीयत खराब हो सकता है वो बहुत दूर से आ रहा है, वो आके मेरे साथ कोऑपरेट ना करे। हो सकता है मैं कोई बच्चा दूसरा बच्चा देख रहा हूं, वो आके वेट कर रहा है। सो बहुत सारा रीजन होता है जो बच्चा थेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकली, और बहुत सारा थेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के मुंह से भी मैंने ये बात सुना है कि अगर काम करना है तो 3 सेटअप में करना चाहिए। असेसमेंट 3 सेटअप में होना चाहिए। कैसे? एक घर के असेसमेंट सेटअप में जो बच्चा कैसे काम कर रहा है, एक जब आपके पास आ रहा है उस सेटअप में आप बच्चा कैसे कर रहा है, और 30 नंबर स्कूल सेटअप जहां पे बच्चा दिन भर रह रहा है, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो। वहां पे स्कूल का जो मिस है, स्कूल का जो टीचर है, उनका क्या कमेंडेबल, उनका क्या सजेशन, उनका क्या कहना है। क्योंकि हो सकता है कोई बिहेवियर पार्टिकुलरली किसी एक टाइम पे हो या दूसरे टाइम पे नहीं हो। सो टोटल गैदरिंग इंफॉर्मेशंस चाहिए। तो सो वी नीड SOAP planning. SOAP planning means subjective objective assessment planning. So we need subjective assessment, we need objective assessment, standardized and both non-standardized, whatever our professionals can use, and assessment, and then follow up, proper follow up. आफ्टर असेसमेंट एक बच्चा आज असेसमेंट करके थेरेपी करके गया, फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद उसका कोई ये नहीं है, उसके बाद फिर 1 महीना बाद आया, ऐसे बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। सो विथ टीचर विथ पेरेंट्स ये आपको असेसमेंट करना, प्लानिंग करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग को डोज देना है और कैसे देना है। क्योंकि कुछ समय दिखा जाता है ये सब डोज बहुत ही ज्यादा अगर ओवर डोज हो गया, वो हेल्प करने के बजाय वो बहुत खराब करता है। सर सोसाइटी में आज की जो सिनेरियो है इंडिया में, हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली,
लोगों को पता नहीं है कि बच्चों की कौन सी डेवलपमेंट सही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग के पास जब आते हैं, जो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड आते हैं, उनके लिए आपकी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स के लिए या वो बच्चों के लिए आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या रहती है? जब सर वो कोई भी बच्चा आया तो मैं फर्स्ट पेरेंट्स को बोलता हूँ, आप उसका उम्र कितना है पहले अब मुझे ये बताओ। अब कोई अगर बोलता है 3 साल, कोई अगर बोलता है 4 साल, तो पहले मैं उनको बोलता हूँ आपका 6 एस्पेक्ट है एक बच्चे का। क्या? फिजिकल, स्पीच, कॉग्निटिव, एकेडमिकल, सोशल एंड बिहेवियर। ये 6 एस्पेक्ट में आपका बच्चा जो उम्र है, कौन सा बिहेवियर, कौन सा स्किल वो अचीव किया है और कौन सा नहीं किया है, पहले ये आप चार्ट बनाओ फर्स्ट। सेकंड, आपके लिए प्राइमरी कौन सा है, क्योंकि एक बच्चा 3 साल और 4 साल का जो भी आ रहा है वो बहुत सारा बिहेवियर दिखाता है। बहुत सारा पेरेंट्स जब आते हैं पूरा फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं कि सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, मैम ये नहीं हो रहा है, मैम सर मैम ये वाला ठीक करना है। तो मैं कौन सा पहले करूं, कौन सा मेरा प्राइमरी फोकस है, वो पहले सही करना होगा, नंबर 1। सेकेंड वन इज पेरेंट्स को पढ़ाई करना होगा। जैसे मेरा मानिए मेरा बच्चे को जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, वो नाखून नहीं काट रहा है। अब सोचना है मुझे, क्या ये सेंसरी प्रॉब्लम है, क्या ये डर के वजह से नहीं काट रहा है, क्या उसको मालूम ही नहीं है ये नाखून कैसे काटना होता है। सो पहले उसको क्या करना है, उसको पहले आप उसको गोद में बिठाओ, बिठा के दिखाओ सोशल स्टोरी या कोई वीडियोस में कैसे दूसरा एक बच्चा काट रहा है। उसके बाद आप उसको बिठा के अपना नाखून खुद काटो उसके सामने, और काटते काटते उसको बोलो ये क्यों काटना चाहिए, क्यों जरूरी है, वो सुनेगा। ऐसा नहीं है आप एक दिन बोल दिए और सुना नहीं होगा वैसे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो यू नीड टू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद वो एक दिन जरूर हाथ बढ़ाएगा। डोंट लूज योर पेशेंस। प्रैक्टिस, सोशल स्टोरी, विजुअल मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट, ये 4 आप उसको अप्लाई करो। बच्चा है ना, अगर बहुत ही ज्यादा काटने के टाइम में उसका हाथ कट गया, दैट कॉल्ड पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो नाखून कटने के टाइम अगर छोटा भी कट गया, वो भी उसको स्ट्रेस दे सकता है। तो कोई भी छोटा स्ट्रेस हम लोगों का ब्रेन में बहुत ही दिक्कत ला सकता है। तो डू प्रॉपर इन वे, जैसे विजुअल मॉडलिंग, सोशल स्टोरी, देन रीइंफोर्समेंट। तो मेरा यही मानना रहेगा, या मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो जो स्किल वैल्यूएबल है, जो जो बिहेवियर आपका लर्निंग, आपका सेल्फ इंजुरी और दूसरे को सेल्फ इंजुरी नहीं कर रहा है, उसको आप एक जगह पे लिखो, मार्कआउट करो। अब कौन सा आपको प्रीलिमिनरी है उसको आप इंक्लूड करो और बाकी सबको सेकेंडरी में रखो। सर आज के टाइम में सोसाइटी में ये हम लोग देखते आए हैं कि जिन जिन लोग की, जो पेरेंट्स लोग की बच्चे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी सी भी पता है कि हाँ ये अभी तक बात करना चाहिए, ये अभी तक ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, ऐसा वोकैबुलरी हो जाना चाहिए था, फिर भी वो लोग चुप रहते हैं या हिचकिचाते हैं कि कोई एक्सपर्ट के साथ सलाह किया जाए, कोई साइकोलॉजिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को विजिट किया जाए, क्योंकि उन लोग को लगता है कि अगर वंस एक साइकोलॉजिस्ट के पास या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास चले जाते हैं तो एक स्टाम्प लग जाता है, जिसको सोशल स्टिग्मा बोल सकते हैं कि उनका बच्चा मेंटल रिटार्डेशन है, उनका बच्चा मेंटली फिट नहीं है। तो इसको लेकर आगे लाइफ में उसका कैसा रहेगा सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, ये सोचकर वो बच्चे को शायद प्राइमरी स्टेज में सही जो अप्रोचेस है हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की सही अप्रोचेस उन लोग को अवेल नहीं कर सकते या नहीं किया जाता है, नहीं कर रहे हम लोग कहीं ना कहीं। ये आपको लगता है? मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ सर, क्योंकि
अभी इंडिया में अब कोई भी स्टेट में जाओ, जैसे एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ, मैं ये यहाँ का फैक्ट मैं वेस्ट बंगाल का और कोलकाता से का फैक्ट बहुत ज्यादा बोल पाऊंगा। जैसे ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और कोलकाता में नहीं है, मेरा जो कॉलीग्स है, मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरा जो टीचर्स है, वो लोग सब डिस्कस करते हैं कि कहीं भी जो ये सोशल स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है पेरेंट्स लाइफ को। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक स्पेक्ट्रम बच्चा आ गया, कोई डेवलपमेंटल डिले बच्चा आ गया, और कोई एक जगह पे न्यूरोटिपिकल चाइल्ड खेल रहा है, उसके साथ अगर उसके साथ उसका टच भी हो गया, चलो मेरा बच्चा खराब हो गया। ऐसा भी सुनने में मिला है, ऐसा भी देखने को मिला है। सो मैं पेरेंट्स को ऐसा ही बोलूंगा कि बच्चा आपका है, चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, बच्चा बच्चा ही होता है। ठीक है, आप लोग डिसाइड करके उसको ये दुनिया में लाए हो, तो दूसरा कौन होता है बोलने वाला? सोसाइटी बहुत कुछ करेगा। सो आप अगर एक दिन नहीं खाना खा के रहोगे ना, तो कोई ऐसे आके आपको खाना नहीं खिलाएगा, आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो बच्चा आपका ही है, तो आपका डिसाइड करना है कि मैं पीछे रहूंगा कि मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि एक स्पेशल चाइल्ड कैन परफॉर्म 10 टाइम्स बेटर देन न्यूरोटिपिकल चाइल्ड। हम लोग का जो आइंस्टाइन थे, वो भी एक स्पेशल टाइप के भी पर्सन थे, फिर वो कहां से कहां पे गए। सो यू नीड टू परफॉर्म, क्योंकि प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज आगे जा सकता है, कोई भी बच्चा आगे जा सकता है। सो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट स्टिग्मा। सोसाइटी के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी सर? मैं तो सोसाइटी के लिए यही बोलूंगा कि अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसा बच्चा दिखे जिसके पास ये रिहेबिलिटेशन करने का भी पैसा नाम है, आप नजदीक जहां पे मुफ्त का फ्री का भी ऐसे थेरापी चल रहा है, या थेरापी वो लोग प्रोफेशनल दे रहा है, उनके पास उनको लेके जाइए, आप उनको लेके जाइए, उनके मम्मी को लेके जाइए, उसके पेरेंट्स को लेके जाइए, दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे को पहला दिन दूसरे के बच्चे को लेके चले जाना है, ऐसा नहीं है। आप पेरेंट्स को लेके जाइए, क्यों ये जरूरी है उसके बच्चे के लिए। कोई भी बुक दीजिए या कोई भी वेबसाइट उसको दीजिए पढ़ने के लिए। जो एफर्ट कर सकता है वो एफर्ट कर सकता है, जो एफर्ट नहीं कर सकता है उसको आप हेल्प करो। क्योंकि जिसके घर में ऐसा कोई बच्चा रहता है ना, वो जानता है इसका दर्द क्या है। सो आप दूसरे को हेल्प करो, कभी ना कभी भी ये घूम के आएगा। मुझे मिला है, इसलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। Thank you so much, sir, for giving us such a beautiful and wonderful session, and also it is very informative. आज की जो सेशन है बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला है हमको। ये व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, और बाद में इसको जितना भी सर्कुलेट किया जाएगा उतना लोगों तक पहुंचाएंगे हम। तो थैंक यू, इसके लिए आपसे हम आभारी है, इतना टाइम निकाल के इतना सारे इंफॉर्मेशन आप दिए हैं। चलिए, आज की सेशन की जो सारांश था, जो थीम था, रूल ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन, चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो एटिपिकल हो, बच्चे हर किसी के लिए प्यारा होता ही है। लेकिन हम सोसाइटी में कई बार हम ये देख रहे हैं, अगर किसी के बच्चे को न्यूरोटिपिकल प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में कुछ इश्यू है, तो उसको साथ में जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन लोग के साथ खेलने नहीं दिया जाता है, उन लोग के साथ मिलने नहीं दिया जाता है। ये समझते हैं कि उसके साथ अगर मिलेगा, उसके साथ अगर बैठेगा, उसके साथ अगर खेलेगा, तो हमारे बच्चे भी एक दिन पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सोसाइटी में हमको साथ में जीना है। अगर आप आज किसी को पातर अंतर कर रहे, आज किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे, तो कल हो सकता है लाइफ में आपको भी वो समस्या आ सकती है। ये क्यों हम भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ भी एक पाथ है, जो पाथ में हम भी घूर फिर के वही पहुंच सकते हैं। हमारा साथ भी वही हो सकता है जो आज हम कर रहे दूसरे के साथ। ये यूनिवर्सल की लॉ है, आप जो करेंगे, जैसे ही करेंगे ऐसे ही आपको भरना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ मिलकर चलना है। ये हमारा प्रयास जारी है आप सबके लिए। अगर आपके आसपास में कोई भी बच्चा आपको लग रहा है न्यूरोटिपिकल है या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है, अगर उनके पास कोई मॉनिटरी सोर्सेस नहीं है, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे पास आइए। हम यहाँ पे कोई कंसल्टिंग फीस नहीं लेते हैं, कोई भी
चीज को डायग्नोस करने के लिए या देखने के लिए हम कोशिश करेंगे आपको जो भी रिसोर्सेस होगा, जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे, उनके साथ कंसल्ट करने के लिए अगर आपके पास मॉनिटरी फंड नहीं है, अगर आप किसी को जानते हैं। अगर आप लोग से और कोई सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को अगर कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे तो हमको सोसाइटी या सोशल स्टिग्मा बैठा दिया जाएगा कि मेंटल रिटार्डेशन है या पागल है, ऐसा अगर सोच रहे तो आप बहुत बड़ी गलती अभी से कर रहे हैं। आप जिसको जिंदगी देने वाले हैं उसके लिए लाइए, उसके साथ कंसल्ट कीजिए और वो बच्चे को एक नया लाइफ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल इश्यू रह के भी बहुत लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। और अभी अभी आप कितना भी स्टोरीज आप देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे कुछ नहीं कर सकता, शायद वो बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। ये उसका गलती नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम आया है, ये उसका गलती नहीं है, ना तो आपकी गलती। ये वक्त की गलती हो सकता है, ये समय की जो आदेश है। हम सभी का लाइफ में कुछ ना कुछ हार्डल्स आएगा ही आएगा, इसलिए तो ह्यूमन लाइफ है, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। तो सोसाइटी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना ये बहुत बड़ी गलती है। हम साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर चलना है, सबको साथ लेकर ही हम एक सोसाइटी की, एक सुंदर सोसाइटी की जो परिभाषा है उसको हम बदल सकते हैं। इसीलिए हम हर वक्त ये बोलते आए हैं कि अपनी नजरिए को एक बार बदल के देखिए, अपनी जिंदगी का नजरा जरूर बदल जाएगा। इसी नोट्स के साथ हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हमारे पास होंगे एक नया मेहमान जो कि इंटरनेशनल से जुड़ेंगे, कनाडा से स्पेसिफिक न्यूरो फीडबैक थेरापिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कनक पांडे की सेशन है कल लाइव 7 बजे। फिर से जुड़ेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।